Hello friends, Dobry вечер, всем еще раз. I welcome you all to this Facebook live session of our Certificate in Russian Language CRUL for the learners of CRUL online and open and distance learning mode. Alright, so it has started. So welcome to the live session once again. If you remember, in the previous session we have discussed about many different aspects of the Russian grammar and phonetics. Now if you remember, we have also shared the document, the e-content of our CRUL. People who are joining for the first time, they can also access the e-content from eGyan-Kosh. People who are already in the group, they can have the access from the WhatsApp group, from the Telegram group. And now we will be talking about the block 4. So this is the block 4. It is also available in the soft copy on eGyan-Kosh, so you may please quickly download it and make it ready so that we can have our discussion on. In the beginning, we have discussed about various aspects of the Russian grammar and various different case system, in which we have discussed about the Predloshny Padyesh, we have talked about Iminichilny Padyesh, Minichilny Padyesh, and little bit about Dachilny, Rajichilny, Twarichilny, and we have also discussed about Glagoli Dvizhenya, which is also known as the verbs of motion. We have discussed about Ichi and Khadzij and how do we use them with the places of the masculine gender and the feminine gender, how these different endings play an important role, and many more things about the Russian grammar. We also did one mock test, and I believe that this mock test helped you a lot. We will be having our next mock test tomorrow at 4 p.m. on Microsoft Teams. However, I would like to request Rupinder and Jackie and other people who are in our group and active. They can also share these videos with the learners who are in our group, and you can also post the link to our Telegram group over here in the chat box, so that people who are new, they can also join in and can get the benefit. Alright, so please follow the request and do it. Now if we talk about the previous homework, which I did ask you about writing 5 different nouns of masculine and feminine gender and make sentence while using katori. We also did tell you about using katori conjunction with the help of preposition predlog such as va and na. For example, dom в котором я живу находится в Delhi. The house where I live is located in Delhi. Библиотека, в которой я читаю, находится недалеко. So the library where I am reading is located not very far. So these kind of sentences were supposed to be done by you and submitted, and I still have to see many of you have not submitted the homework, so please do it. The second homework was using the counting, and as we know that in Russian, when we talk about counting, we have different rules for the masculine and the feminine. For example, if we talk about brat, which means brother, один брат, два брата, три брата, четыре брата, пять братьев. Likewise, we have other different masculine gender words, but for feminine gender we have adna kniga. It's not ajin, it's adna kniga. Dve knigi, it's not dva kniga, it's dve knigi, tri knigi, четыре knigi, пять knig. So likewise, you can differentiate between different nouns depending upon their gender, whether they are masculine or feminine, and try to use them as in counting and make your own sentence. For example, у меня есть 3 машины. I have 3 cars. Or у меня есть 2 дома. Or I have 2 houses.
उमिनिया येस प्याच क्वार्चीर, आई हैव 5 फ्लैट्स. या फिर उमिनिया येस प्याच रूचेक, आई हैव 5 पेन. उमिनिया येस अदना कनीगा, I have 1 book. So these kind of sentences can be prepared by you, and you can also make them likewise. In between you can also post your questions over here if you like to. Okay. All right, so some of the requests are coming in between, and if you have any questions you can ask me besides good evening and hello. Okay. All right, so now please open the this is the block 4. Okay, please open. And now we have discussed about a few important cases in Russian. The iminичный падеж, предложный падеж, винительный падеж, and дательный. Дательный is basically in дательный we use the expressions which we use to address. For example, या पिशु पिस्मो, I am writing a letter. अगर इंग्लिश में भी हम लोग बोलते हैं ये चीज़, तो मैं पत्र लिख रहा हूँ किसको. तो जब इस तरीके का कोई सेंटेंस हमें फॉर्मुलेट करना होता है विच हैज़ टू बी एड्रेस्ड टू समवन और टू whom आर वी एड्रेसिंग, तो उसमें जो एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर क्या मतलब मुझे लगता है कि मोस्टली वो हमेशा ही दाचिलनी में ही यूज़ होते हैं. नपिशु पिस्मो क टू whom, तो उसमें अगर मान लीजिए ब्रात है, आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर, या नपिशु पिस्मो मैमू ब्रातू, तो मैं अपने भाई को लेटर लिख रहा हूँ. उसी तरीके से जैसे हम बाकी केसेस में देखते आए हैं कि मैस्कुलिन और फेमिनिन की एंडिंग अलग अलग होती है, वैसे ही इसमें भी होता है. आप जब बोलेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम अगर प्रीफिक्स की बात करें, इसमें होता है पद, पदैची या फिर पदशोल कमामे, आई वेंट टू द मदर, और रिब्योनक ऑन पदशोल कमामे, द चाइल्ड वेंट टू द मदर. तो इस तरीके से कुछ सेंटेंसेज आप दाचिलनी में बना सकते हैं. ज़्यादातर केसेस में इसमें हम लोग उस तरीके के वर्ब्स को यूज़ करते हैं जो हम उस सेंस में यूज़ करते हैं जो हम किसी को एड्रेस करते हैं, किसी के द्वारा किसी के लिए किया जाता है जो काम, उसको हम लोग इसमें ज़्यादातर बोलते हैं, यूज़ करते हैं. तो आप लोग भी इसको उसी तरीके से कर सकते हैं, और ज़्यादा उसकी जो जानकारी है वो हमारी बुकलेट्स में दी हुई हैं, एक बार इनको भी आप पढ़ लें. ओके, आज फिर हम लोग अब बात करते हैं नियत की. अभी ज़्यादातर लोगों ने जो द और नियत का एक्सप्रेशन को समझा है वो सिर्फ ये समझा है कि द का मतलब होता है यस और ना का मतलब होता है, नियत का मतलब होता है नहीं या फिर नो. लेकिन रजी चिलनी प्रदेश में जब हम अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो एक सेंटेंस अगर इसमें हम लोग देखें पेज नंबर 6 में बुकलेट के, तो ये यूनिट नंबर 1 है. इसका टाइटल है नाउन्स एक्सप्रेसिंग पोजेशन, बिलोंगिंगनेस एंड नेगेशन. ठीक है, तो इसमें हम लोग नियत आज एक बार एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे, जिसमें आप देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा है, जैसे हम जानते हैं ध्रुव मतलब दोस्त. कोमनते नियत ध्रुगा, तो कमरे में कौन नहीं है, तो ध्रुव जो होता है इट चेंजेस इनटू ध्रुगा. सो द नॉमिनेटिव noun ध्रुव changes into ध्रुगा in this case whenever we use नियत. so नियत कवो हाँ, या फिर कवो नियत कौन न, कमरे में कौन नहीं है, कमरे में दोस्त नहीं है. तो उसको रशियन में हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं जैसे कि हम हिंदी में बोल रहे हैं या इंग्लिश में बोल रहे हैं. नियत के बाद में ये एंडिंग फॉलो होती है, फोमनते नियत ध्रुगा. अगर इसकी जगह ब्रात होता तो नियत ब्राता. और अगर इसमें कोई फेमिनिन जेंडर हो तो उसके लिए अलग एंडिंग होती हैं. उसमें आप देखेंगे जैसे आन्ना है
कोमनते नियत आनी, कोमनते नियत पदरूगी, कोमनते नियत मामी, इस तरीके से उसकी एंडिंग्स बनती जाती हैं। तो इनको आप एक बार ज़रूर देख लें, ये बहुत ही ज़रूरी कंस्ट्रक्शन है रशियन में, क्योंकि हमेशा आप हाँ में ही जवाब नहीं देंगे, कई बार ना में भी जवाब देना होता है। तो उसकी कंस्ट्रक्शन रशियन में ऐसे ही होती है, और उसका हमेशा जब भी सवाल बनेगा अगर वो एनिमेट है तो कबो नियत, जैसे खतो हमने सीखा है खतो, वैसे ही अगर जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो कबो नियत, ठीक है। और अगर इनएनिमेट है तो चिवो नियत, चिवो नियत। कोमनते चिवो नियत मतलब कमरे में क्या नहीं, मान लीजिए जीवान, तो नियत जीवाना, कोमनते नियत जीवाना, ठीक है जो, या फिर कोमनते नियत स्थला। तो उसी तरीके से आप और भी सेंटेंसेस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि हमने एक लिस्ट बनाई हुई है तो एन कबो नियत की। तो व्राच चेंजेस इनटू व्रचा, आर्चिस्त चेंजेस इनटू अर्चिस्त, स्टूजेंट चेंजेस इनटू स्टूजेंट, ऐसे और भी बहुत हैं, लेकिन क्योंकि रशियन एक्सेप्शंस बहुत होती हैं इसलिए पापा चेंजेस इनटू पापुल, ज्याजा चेंजेस इनटू ज्याजी, जेदुष्का चेंजेस इनटू जेदुष्की। हालांकि ये सब मैस्कुलिन जेंडर के नाउन्स हैं, लेकिन एंडिंग जो है वो फेमिनिन की तरह हो रही है, ठीक है। और जो सॉफ्ट साइन से ख़त्म होते हैं जैसे उचीचिल, गोस, पिसाचिल, करोल, तो उचीचिल लिया सॉफ्ट साइन हट जाएगा, उसकी जगह या, गोस गस्या, पिसाचिल पिसाचिलिया, करोल करलिया, अंद्रे अंद्रेया, वसीली वसीलिया। तो ऐसे ही चेंज होता है। इसको आप एक बार पढ़ेंगे, यू विल फाइंड इट रियली इंटरेस्टिंग। वैसे ही फेमिनिन जेंडर के कुछ नाउन्स हैं, पदरूगा, ससियत का, गस्पर्शा, बाबुश्का, ओल्गा, माशा, नताशा, चेंजेस इनटू पदरूगा पदरूगी, ससियत का ससियत की, गस्पर्शा गस्पर्जी, बाबुश्का बाबुश्की, ओल्गा ओल्गी, माशा माशी, नताशा नताशी। तो जो भी नाउन्स आ में होते हैं ख़त्म, जैसे पदरूगा ससियत का, चेंजेस इनटू ई। जैसे एक एक्टिविटी 1.8 है, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो है जिरेवनिया येस क्लिनिका, पूछ रहा कि गांव में पॉलीक्लिनिक है क्या, तो अगर जवाब है नहीं है तो जिरेव ने नियत पॉलीक्लिनिकी। तो पॉलीक्लिनिका बिकॉज इट्स अ फेमिनिन जेंडर वर्ड्स एंड्स विद आ, चेंजेस इनटू ई, पॉलीक्लिनिकी। तो औजिटोरिया औजिटोरी, ठीक है, स्कोला स्कोली। तो उस तरीके से ये चीज़ चेंज होते जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा यूनिट नंबर 2 के बारे में पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव्स एक्सप्रेसिंग पोजेशन बिलोंगिंग्स नेगेशन। हालांकि अभी हम लोगों ने स्टिल एडजेक्टिव्स के बारे में बहुत नहीं पढ़ा है, सिर्फ नॉमिनेटिव में पढ़ा है, क्योंकि अभी हम चाह रहे हैं कि सेंटेंसेस हम लोग सिर्फ वो बनाएं जिसमें हम लोग नाउन यूज़ कर रहे हैं, वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं, एडजेक्टिव नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो इसको अभी आप हालांकि देख तो सकते हैं, जैसे नोवी है तो नोववा, नियत नोववा, नियत प्लखोवा, इस तरीके से चेंज होता है। लेकिन अभी हम लोग क्योंकि बिगिनर लेवल पे हैं तो अभी इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि जो लोग पढ़ना चाहते हैं या जिनके पास समय है तो वो इस चीज़ को ज़रूर देख लें। एक्टिविटीज़ जो यूनिट नंबर 2 की है, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, इनको ज़रूर देखें। तो इसमें जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, जैसे मान लीजिए मलात्शी मलात्शी ब्रात, तो इट वुड चेंज होते दोमा नियत मलात्शवा ब्राता, मलात्शी ब्रात चेंजेस इनटू मलात्शवा शवा ब्राता। मालिंग के साथ मालिंग कवा सदा, ठीक है, चीखी अकियान चीखवा अकियाना, स्त्रोगी चिलावेक स्त्रोगवा चिलाव्यका। इस तरीके से ये चेंज होता है, लेकिन आई स्टिल बिलीव दैट इट इज़ लिटिल कॉम्प्लेक्स फॉर द बिगनर्स, सो वी विल नॉट गेट इनटू इट, बट स्टिल हु वुड लाइक टू हैव अ ट्राई दे कैन डू इट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिविटी नंबर 2.9, यूज़ द करेक्ट इंटरोगेटिव वर्ड फॉर द अंडरलाइन एडजेक्टिव। मॉडल है कोमनते नियत नोववा स्तुजियंता। तो इसका सवाल क्या हुआ, जैसे हमने सीखा है ककोई ककाया ककोए ककी है ना, कौन सा। तो ये हम लोगों ने सीखा है कि भाई
नॉमिनेटिव में 4 सवाल होते हैं, लेकिन जब यही सवाल हम लोग इसमें करेंगे तो ककोवा स्टूडेंट नियत कोमनते, नोवा स्टूडेंट नियत कोमनते। तो कौन सा स्टूडेंट को रूम में नहीं है, तो द न्यू स्टूडेंट इज़ नॉट इन द रूम। तो ककोवा स्टूडेंट नियत कोमनते, तो उसकी जगह होगा कोमनते नियत नोवा स्टूडेंट। तो इसमें 3 सवाल हैं। मगाजीने नियत रूस्कवा इजिका, नियत रूस्कवा उच्चेबनिका। तो ककोवा उच्चेबनिका नियत मगाजीन है, तो रूस्कवा। फिर कियोस की नियत последнего журнала, तो последний журнал मैस्कुलिन जेंडर, तो какого журнала нет в киоске, तो последнего। ना столе нет английской газеты, अब गज़ेता जो है वो फेमिनिन जेंडर है, इसलिए इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो दूसरा हो जाएगा какой, है ना, какой газеты нет ना столе, सो английской। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज होता है, इसको आप एक बार देख लीजिए। अब हम लोग यूनिट नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, एडजेक्टिव विद न्यूमरल्स एंड कंपैरेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स। न्यूमरल्स हम जानते हैं, जब हम लोग 1 2 3 4 5 या उससे अधिक की बात करते हैं, तो हमें ये पता है कि अभी हमने काउंटिंग सीखी है मैस्कुलिन की और फेमिनिन की, सबकी दोनों अलग सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं, और उसको जब हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो कैसे उसको किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज नंबर है 3.2, उसमें देखिए उमिनिया ये 3 नोविये कनीगी, आई हैव 3 न्यू बुक्स। 3 नोविये, इसमें वो लग गया एडजेक्टिव, नोविये कनीगी। और ककीये कनीगी, नोविये कनीगी। और स्कोल का कनीग, जब पूछते हैं स्कोल का मतलब कितनी है, तब हम लोग 1 2 3 या जो भी काउंटिंग होती है उसको यूज़ करते हैं। सेकंड उसका सवाल है उब्राता ये 2 नोविक करंदशा। तीसरा है नास्तल्य लेजत चित्तीरी नोविक पीसमा। तो इसमें नोवी का जो फॉर्म है इट हैज़ बीन चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द यूजेज ऑफ द केसेस। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस एंड देयर फॉर्म्स 3.4। पर्सनल प्रोनाउंस हम जानते हैं, जितने भी या, ती, ओन, अना, मुई, वी, अनी होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउंस तो कवो नियत उकवो, या मिनिया नियत उमिनिया, ती चिबिया नियत उचिबिया, ओन युवो नियत उनिवो, आना इयो नियत उनियो। तो इसी तरीके से एक लिस्ट दी हुई है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। ये सिंपल वही चीज़ फॉलो करता है जो हमने अभी शुरू में आपको बताया, या, ती, ओन, अना, अनु, मुई, वी, अनी। इसी फॉर्मेट में एज पर द यूजेज ऑफ दैट पर्टिकुलर केस यू कैन यूज इट फर्दर। फिर हम लोग बोलते हैं, एक एक्सप्रेशन है बहुत पॉपुलर है रशियन में, नॉर्मली हमेशा यूज होता है, ऊ का वो येस्ट, ऊ का वो नियत, मतलब हु हैज़ इट एंड हु डजंट। तो ऊ का वो येस्ट, ऊ का वो येस्ट, ऊ का वो नियत। तो फॉर एग्जाम्पल ऊ का वो येस्ट रुचका, ओमिनिया येस रुचका, आई हैव अ पेन। ओमिनिया नियत रुचकी, आई डोंट हैव अ पेन। सो नियत के बाद रुचकी। वैसे करंदाश, करंदाशा, क्वर्चीरा, क्वर्चीरी, कनीगा, कनीगी, ऐसे ही चेंज हो जाएगा नियत लगने के बाद। और एक्सप्रेशन उवास येस, डू यू हैव, ओमिनिया नियत, तो आई डोंट हैव। अगर आपको बोलना है द ओमिनिया येस, तो उसमें नॉमिनेटिव ही लगेगा उसमें, क्योंकि नियत नहीं लग रहा है, इसीलिए वो एज इट इज़ ही रहेगा। आपसे पूछेगा उवास येस रुचका, तो आप कहना चाहते हैं अगर द ओमिनिया येस रुचका, सो रुचका विल नॉट चेंज। But if you want to say that I don't have a pen, then it would be उमिनिया नियत रुचकी। ठीक है, तो ये सिंपल इसमें इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि थोड़ा सा आप लोगों को यूज़ हो जाए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, जो कंपैरेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स होता है 3.11। ठीक है, कंपैरेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो मुझे कोई बता सकता है कंपैरेटिव फॉर्म्स क्या होता है एडजेक्टिव में? कोई उसमें लिख दे चैट बॉक्स में, तो मैं समझ जाऊंगा कंपैरेटिव फॉर्म्स क्या होता है। हिंदी में, इंग्लिश में बता सकता है, चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं।
कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है एडजेक्टिव का? कोई भी एडजेक्टिव कंपैरेटिव फॉर्म का मतलब क्या हुआ? देखिए, कंपैरेटिव फॉर्म एडजेक्टिव का बहुत सिंपल ये होता है कि जब भी हम किसी दो डिफरेंट मतलब डिफरेंट लेवल पे किसी एक चीज़ को नापते हैं, जैसे गुड बैड, है ना, जैसे गुड जैसे वो मान लीजिए कि क्या होता है, गुड, बेटर एंड बेस्ट, ऐसे होता है ना। उसी तरीके से रशियन में भी होता है जब आप किसी भी दो फॉर्म्स को यूज़ करते हैं, जैसे बुइस्त्रा मतलब तेज, है ना, क्विक। तो उसका जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है वो होता है हाँ गुड, बेटर, बेस्ट, राइट, एग्जैक्टली। तो उसी तरीके से रशियन में भी होता है, लेकिन इसका एक बहुत इजी तरीका ये होता है कि हम लोग इसको सिर्फ दो ही फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, जैसे गुड, खरशो, है ना, गुड, खरशो। और उसको बेटर जब बोलते हैं हम लोग या बेस्ट बोलते हैं तो खरश ये आखिर में लग जाता है। बुइस्त्रा, बुइस्त्री ये। क्लोखा का होता है ऐसे खुश है, ये थोड़ा सा अलग होता है। बाकी जैसे चोरनी है, चोरनी ये, त्रुदनी ये, इंचरियसनी ये, बुइस्त्री ये, मेदलिनी ये, बेदनी ये, सीलनी ये, स्लाबी ये, नोवी ये। इसका मतलब है जैसे त्रुदनी है मीन्स डिफ़िकल्ट, त्रुदनी ये जो और भी मुश्किल है, इंचरियसनी जो और भी डिफ़िकल्ट है, इंचरियसनी मतलब इंटरेस्टिंग, इंचरियसनी ये विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग। बुइस्त्री मीन्स फास्ट और बुइस्त्री ये मीन्स फास्टर। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा एक वर्ड भी है बुइस्त्रा, और इंग्लिश में भी आजकल छोटे मोटे जो कैफ़े खुल गए हैं वो लोग लिखते हैं बिस्ट्रो, तो ये रशियन वर्ड ही है, बुइस्त्रा इसको बोला जाता है रशियन में। बुइस्त्रा मतलब क्विक फूड, है ना, क्विक जो फूड देता हो, बुइस्त्रा, तो उसको रशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्विकली या फास्ट। तो बुइस्त्रा चेंजेस इनटू बुइस्त्रे, मेदलिना मीन्स स्लो, चेंजेस इनटू मेदलिनिया ये। तो इसमें आप ये देखिए ये भी है, बुइस्त्रा का उल्टा क्या हो गया, मेदलिना। बेदनी का बगाती, तो बेदनिया ये उसका होता है बगाती, बगाती का बन जाता है बगाचे। वैसे सीन्य ये उसका होता है उल्टा क्या, स्लाबी मतलब जो वीक है, सीलनी मतलब स्ट्रॉन्ग और स्लाबी मतलब वीक। और इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है, सीलनी ये, स्लाबी का होता है स्लाबिये ये। ऐसे इसमें और भी बहुत सारे दिए हुए हैं, इसको देख सकते हैं आप। स्वेतली है ब्राइट, स्वेतले ये। चोरनी मीन्स ब्लैक, इसका होता है चोरनिया ये, मतलब डार्कर कह लीजिए या मोर ब्लैक कह दीजिए। बेली मीन्स वाइट, बेल ये। इज़वेस्नी ये, क्रूपनी ये। तो इसमें हम लोग कैसे, मान लीजिए अगर मुझे बनाना है एता ज़दाचा त्रुदनाया, एता ज़दाचा दिस टास्क इज़ डिफ़िकल्ट, नोता ज़दाचा त्रुदनिया ये, है ना, ये काम तो मुश्किल है, वो वाला काम उससे भी मुश्किल है। या फिर एता दोम क्रसीवी, नो तो दोम क्रसीवी ये घर खूबसूरत है लेकिन वो वाला घर उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। इस तरीके से कंपैरेटिव फॉर्म्स को हम लोग रशियन में यूज़ करते हैं। इसको ज़रूर आप लोग पढ़िए। ये है एक्टिविटी नंबर 3.11। अब आप लोगों का होमवर्क है ये कि आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं। इसमें काफ़ी सारे कंपैरेटिव फॉर्म्स के वो दिए हुए हैं, कम से कम मुझे लगता है 20 होंगे। इसमें से कोई से भी 5 आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है, और उसमें से आप सेंटेंस बना लीजिए। सिंपल कंस्ट्रक्शन ऐसे करना है, एतद दोम क्रसीवी, नो बट तोत दोम क्रसीव ये, मतलब ये घर खूबसूरत है लेकिन वो वाला घर उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसे ही आप खूब सारे कंपैरेटिव फॉर्म को यूज़ करके बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, या पिशो खरशो, आई राइट गुड, नो मोई ब्रात पीशत लुत्शे, बट माई ब्रदर राइट्स बेटर। तो इसमें एक और हालांकि चेन का कॉन्सेप्ट होता है, वो अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहीं तक इस चीज़ को रोक रहे हैं। तो आप इसको प्लीज़
कंपैरेटिव फॉर्म्स को कर लिए. It would help you a lot in comparing two different degrees of the adjective. For example, एक 3.13 में दिया हुआ है ओन पीशत मेदलिना नोना पीशत मेदलिनिया है. ही राइट्स स्लो बट शी राइट्स इवन स्लोअर, है ना. ओन पीशत मेदलिना नोना पीशत मेदलिनिया है. Student говорит быстро, the student speaks fast. No student का говорит быстрее, but the girl student का जिसे रशियन में बोलते हैं, she writes even faster. तो इस तरीके से आप इसमें देख लीजिए, you'll get some idea and make 5 sentences while using the adjectives and their comparative form from the chart. This is the chart here. ठीक है, it is available there. If you have any doubt or problem, you can also contact us on WhatsApp. It's available, but I'll tell you how to find it. The block number 4 of the course number 1, unit number 3, from unit number 3, 3.11. ठीक है, I hope it's clear to everyone. You can say yes or no on the chat box so that I can get the idea, and from there you have to do the homework. All right. Okay, so with this I would like to take your permission, so we'll stop it here. You can also reach us through WhatsApp, and you can also join us our Facebook live group. We'll share the link as well. With this, спасибо еще раз, спасибо огромное, до свидания.